Good evening, guys. Now, without wasting time, let's start the second chapter of chemistry, both for state board, that is in the Maharashtra state board, along with all other India state boards, as well as the CBSE board. And the name of the chapter is Solutions. So till now we have done around one chapter both in physics, chemistry and maths. We have done in physics, that is electrical field, okay, or the electrostatics. In chemistry we have done the solid state, and in mathematics we have done almost kind of differentiation. There was a very lukewarm response from your side regarding the questions, but anyway. So let's start with the second topic, that is known as solutions. Our target for this one would be at least to complete around 5 chapters. Now let's see solutions. Now before I move on to the topic solutions and I tell you all about the concentration and the formula, जो मैं आज के आज ही खत्म करूंगा ताकि कल हम numericals ले पाएं, because इसके बाद में I need to make a video on differentiation as well. The topic actually won't be on differentiation, that will be kind on matrices and determinants, but let's see. So when I am talking about the word solutions, what actually comes to your mind first? So बिना time waste करे हुए, solution is actually composed of 2 components जिसको आप binary solution भी बोलते हो, and this means what? That is solute and solvent. Solute and solvent. But then sir, what do you mean by the word solute and what do you mean by the word solvent? सबसे पहले चीज तो solution का मतलब क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture. So कुछ terms ध्यान रखना which is very important. It is homogeneous. एक बार ये मिल गया, घुल मिल गया, उसके बाद में simple separate नहीं कर सकते. What do you mean by heterogeneous? जिसमें आप चीज़ों को separate कर सकते हो. For example, अभी इतना कोरोना वायरस चल रहा था बीच में, इतना सारा हो हंगामा, and then people were trying to stop their ration. लोग भर भर के सामान रख रहे थे गोनियों के अंदर, बोरियों के अंदर. आफ्टर दैट थोड़े दिनों के बाद में क्या लगता है क्या होगा? उनके अंदर कुछ कीड़े वीड़े पड़ना चालू हो जाएंगे, ओके, बिकॉज उतना सारा हम नहीं खाते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक वी बॉट एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स. देन व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? देन फिर मम्मी आपको आप देखोगे वो हैंड पिकिंग करना चालू होगी. वो हैंड पिकिंग इसलिए कर पाएंगी बिकॉज दैट पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट? दैट इज हेट्रोजेनस. Heterogeneous मतलब something which can be separated. On the other hand, whenever I am talking about the word homogeneous, that means when things cannot be separated. Solute और solvent ऐसे मिल गए एक दूसरे के अंदर कि अब वो separate नहीं हो सकते, right? Now let's come back onto the part. What do you mean by the word solute and what do you mean by the word solvent? So what is solute? Solute is something which is to be mixed in the स्मॉलर क्वांटिटी. सॉल्यूट वो चीज होती है जो आमतौर पे कम क्वांटिटी के अंदर आप किसी चीज में डालते हो, दैट इज नोन एज सॉल्यूट. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट? द लार्जर पार्ट आउट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और द लार्जर पार्ट आउट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज टू बी मिक्स्ड इज नोन एज सॉल्वेंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द वर्ड लेमोनेड. आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय लेमनेड? कुछ नहीं गाइस, टशन मारने के लिए वर्ड है. एक्चुअली लेमनेड इज नथिंग एल्स बट इज लेमन जूस, ओके. सो देयर इज दिस लेमनेड, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन चालू हो रहा है, सो लेमनेड, नींबू की शिकंजी, नींबू का रस, ऑल ऑफ दैट. सो लेमनेड के अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे. फर्स्ट, ऑफ कोर्स उसमें शक्कर वक्कर भी होगी, बट हम अभी केवल 2 की बात करते हैं. वन इज लेमन और लेमन जूस, which is the concentrated lemon juice, and another is water. So जो चीज कम क्वांटिटी के अंदर होती है, this will be known as what? Solute. And what is this? Solvent. Of course, अब आप में से किसी का मन करेगा तो आप चाहो तो इसको भी पूरा का पूरा पी सकते हो, but it is too tangy, So इतना tangy होता है कि आप नॉर्मली इसको पी नहीं सकते हो, but still. So ध्यान रखना, this is known as what? Solute and solvent. But sir, solution के अंदर आप ये क्यों हमें बता रहे हो? ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है. I know कि आपको मालूम है, but इसके आगे का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर ये जानना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट अभी जो कंडीशंस चल रहे थे
पूरे के पूरे मार्केट के अंदर, उसमें तो ये चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है। I'll tell you a small thing. Back when I was in the school, at your age, say at around 18, 17, 16 वाले age पर, at that time paracetamol tablets, ध्यान रखना है केमिस्ट्री का टॉपिक है, so I'm sure that you will be able to understand. So there is this particular word known as paracetamol. Paracetamol. ओके, सो पैरासीटामोल बाय द वे एंटीपायरेटिक होता है, फीवर वगैरह कम कर देगा, पेन थोड़ा सा कम कर सकता है, सो एंड सो फोर्थ, इसके आगे और कुछ नहीं। सो मेरे टाइम पर पैरासीटामोल वाज गिवन एज 250 ग्राम्स का डोज होता था, 250 ग्राम्स का एक डोज होता था। एंड डॉक्टर्स दिन में इंटू 3 लिखते थे, सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको लेना है, कुछ खाने के बाद में ही लेना। मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आता है 750 ग्राम्स इन माई बॉडी, which is okay at that time. Okay, now आजकल जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, आजकल जो मेडिसिन आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने एक मेडिसिन का नाम लिख रहा हूं, दैट इज से डिस्प्रिन फास्ट रिलीफ। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई डोंट नो उसमें इतना होता है कि नहीं होता है, मे बी से ज्यादा भी हो सकता है, मे बी हल्का सा कम भी। डिस्प्रिन फास्ट रिलीफ ना, क्योंकि ये फास्ट रिलीफ करती है। इसमें जो पैरासीटामोल है, ओके, पैरासीटामोल है, एंड दैट पैरासीटामोल इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 750, सॉरी ये ग्राम नहीं है, मिलीग्राम था, 750 mg। डॉक्टर्स कितना देते हैं? 3, सुबह दोपहर शाम। ज्यादा पेन हो रहा हो तो ये कर लेना। And this is equals to 3 0 0 3 5 15 5 21 22. Now this is milligram. Now यदि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम्स होंगे, 10 to the power 3, that is 1000 grams. So technically it is 2.25 grams. अब बोलोगे सर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? 2.25 grams. Now see the kind of consumption I used to have as a medicine back at when I was at your age. I used to have less than even a gram, while you are having 2.25 grams. Now, shockingly, कभी कभी ये टैबलेट्स के साथ में आपको और भी टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर्स, आपको ये खराब हो गया है, वो खराब हो गया है, ये पार्ट हो गया है, आपको ये 3 मेडिसिन देनी है। इमेजिन करो इस केमिकल के बाद में भी और केमिकल और केमिकल और केमिकल और केमिकल। And this is where your immune system does not understand that what is the concentration I need to take, कि कितना डाले जा रहे हैं दवाइयाँ। And इसीलिए आजकल आप देख रहे हो इतने सारे लोगों को इतनी सारी यूनिक बीमारियां हो रही हैं जो इसके पहले 15 साल या 20 साल पहले या 30 साल पहले कभी भी नहीं थी। People are now suffering. Why? Because you are taking more amount of concentration in your body than actually what is required. It's that simple. Okay. आगे आते हैं। बाय द वे द कन्वेंशनल पैरासीटामोल जो आजकल आप लोग रेगुलरली खाते हो, दैट्स नॉट 750 mg, मिनिमम आप लोग जो खाते हो दैट इज अराउंड 500 mg। तो 500 into 3 इट कम्स आउट एज 1500। स्टिल दैट्स डबल देन व्हाट आई यूज्ड टू ईट एंड नाउअडेज यू गाइस आर ईटिंग। एंड ध्यान रखना ये कोई प्रोटीन नहीं है, ये केमिकल्स हैं प्योर, एंड एवरी केमिकल व्हेन इट गोज इनसाइड द बॉडी इज बाउंड टू डू समथिंग और अदर थिंग wrong in your body rather than right. But anyway, let's come back to this particular topic. So, ये वाला जो पार्ट मैंने भी आपको बताया, ये कैलकुलेशंस जानने के लिए आपको ये चैप्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉल्यूशंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड डाल दिया बन गया सॉल्यूशन। सॉलिड एंड सॉलिड के भी सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ से एक नया वर्ड आता है विच इज कॉन्सेंट्रेशन। But before studying the word concentration, let's come back to the word lemonade. So let us suppose मैं आप ही में से किसी एक स्टूडेंट के यहाँ पर गया से पानी पीने के लिए, something of that sort. Okay, and मेरे को चक्कर से आ रहे थे, and then I asked you to can you please give me a glass of lemon water. आपने बोला yes, yes, sure sir. एक बच्चे ने उसके अंदर लेमन पूरा अच्छा आधा नींबू निचोड़ दिया, शक्कर वगैरह डाल दिया, पानी डाल दिया, and then मुझे दे दिया। Okay, done. Maybe कोई दूसरा स्टूडेंट होता, उसके पास मान लो आधा ही नींबू बचा होता, उसने आधे का भी आधा नींबू दिया, एंड डन।
किसी और के पास में जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा, उसने बोला ये तो ना आया है बहुत ज्यादा मेरे को परेशान करता है, इसको तो एक काम करो 2 बूंद डाल दो। फिर आपने 2 बूंद डाल दिया उसके अंदर, एंड देन शक्कर एंड देन नमक एंड देन ले लो। नाउ क्या आपको एक बात समझ में आई? तीनों ग्लासेस के अंदर लेमनेड है, तीनों के तीनों ग्लासेस लेमनेड ही कहलाएंगे। बट द क्वेश्चन इज आप कैसे डिफरेंस करोगे कि कौन सा वाला लेमनेड कैसा है और कैसा नहीं है? अब ये बोलोगे इसमें सर इसमें लेमन ज्यादा है, इसमें लेमन कम है, इसमें लेमन बिल्कुल कम है। ध्यान रखना साइंस के अंदर कम और ज्यादा वाला वर्ड बिल्कुल नहीं चलता। तो इसका मतलब यू नीड टू यूज द वर्ड कॉन्सेंट्रेशन। सो हाउ कैन यू डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन? दैट इज नथिंग एल्स बट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन के अंदर है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। ट्रस्ट मी, आई डोंट नो वेदर आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट गाइस बिलीव मी, आप में से मेजॉरिटियों को यही कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। सर क्या बात कर रहे हो, इतना सिंपल डिवीजन नहीं आता? ट्रस्ट मी नहीं आता। लेट्स सी दिस। आपने सपोज कर लो ले लिया 2 milligrams out of 100 milligrams. 2 milligrams out of 100 milligrams is nothing else but is कितना? That is 2%. This is known as 2% concentration. Okay. Let's change the game. Now let's change the game of something like this. Say 4,000 and divided by, एंड ये वाला पार्ट कितना आ चुका है? ये यहां पर था मेरे पास में 2/100 विच इज नथिंग एल्स बट वाज नोन एज 2%। यहां पर मैंने डाल दिया 4000, नीचे की तरफ में आ चुका है समथिंग लाइक दिस, एंड दैट इज अराउंड 1, 10, 100,000, 10,000 lakhs। 4,000 अपॉन दिस पर्टिकुलर 2 लाख। अब कौन सा वाला परसेंटेज ज्यादा है और कौन सा वाला परसेंटेज कम है? वेरी सिंपल, आप ऐसे कैंसिल करोगे 0 0 0 0 and 0, and technically this part comes out as 2 2s are 4 and 2, so what do you think? Once again 2%। ना आप बोलोगे इस कैलकुलेशन से सर हमें क्या समझ में आता है? प्लीज अंडरस्टैंड, आप जब भी कभी कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो, ये आपको एग्जैक्ट चीज बताती है कि आप एक्चुअली में कितना परसेंटेज किसी चीज में ऐड कर रहे हो, कम कर रहे हो, वो ज्यादा है या कम है, so on and so forth. Another example can be, let us take the example of pharmaceutical industry which is known as medicine industry, and भूल जाते हैं concentration का वर्ड, पूरा का पूरा चैप्टर ही उस पर है, भूल जाते हैं। मान लेते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एक मेडिसिन बन रही है और आप ही मान लो वहां के एक फार्मासिस्ट हो, एक बायोकेमिस्ट हो, तो कुछ कॉम्पोजिशंस आपको मिक्स करने होंगे। अब आप तो आप हो, राइट? आपने वहां पर बोल दिया अरे ठीक है थोड़ा सा तो ज्यादा है ना, एक कोई आपके पास में असिस्टेंट आया, उसने बोला सर वो 2 ड्रॉप्स उसमें ज्यादा हो गए हैं, चलने दो क्या? अरे हाँ 2 ड्रॉप से क्या फर्क पड़ता है? नाउ गाइस रिमेंबर, 2 ड्रॉप से जमीन और आसमान का अंतर पड़ सकता है। यदि वो लाइफ सेविंग ड्रग है तो 0.0001% के केमिकल कॉम्पोजिशन के इधर या उधर होने से कोई आदमी मर सकता है। एंड अभी कौन मरेगा? आई डोंट नो, मे बी somebody from some else region, may be from some other country, may be from your own country, may be from your own region, and who knows, may be from your own family, because वो दवाई कौन ले रहा है किसी को नहीं मालूम। So guys, concentration के अंदर decimals and points make a hell lot of difference। इसका मतलब ट्रिक नंबर 1, जब भी कभी कैलकुलेशन करोगे मेक श्योर द डेसिमल के 2 प्लेसेस बिल्कुल सही आने चाहिए। राउंडिंग ऑफ जुगाड़ नहीं चलता। यहां पे 22.7, प्लीज रिमेंबर 23 नहीं कहलाता, सिंपली नॉट अलाउड। ओके, सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्रिस्प। Now let's come back onto the part of concentration and let's see the various kind of concentrations we are going to discuss. The first is mass percentage। आमतौर पे ये तरीका हम कंसंट्रेशन का तब मेजर करने के लिए लगाते हैं जब दोनों की दोनों चीजें सॉलिड्स के अंदर होंगी। दोनों चीजें मतलब सॉल्यूट भी एंड सॉल्वेंट भी, मतलब एक पाउडर को दूसरे पाउडर के अंदर मिक्स कर रहे हैं।
कोई एक कैप्सूल है, उसके पाउडर को दूसरे पाउडर के साथ में मिक्स कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, दैट इज वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एंड देन वेट ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान रखना सॉल्यूशन में कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? सॉल्यूशन के अंदर पहली चीज होती है, सॉल्यूशन के अंदर पहली चीज होती है सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। सो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट। आप बोलोगे सर आपने WB क्यों लिखा? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये CBSE, स्टेट बोर्ड, एनी बोर्ड में काम करती है। प्लीज ध्यान रखना, ए को आम तौर पे हम लोग नॉर्मली, इट इज नॉट कंपल्सरी, नॉर्मली हम हमेशा इसको सॉल्वेंट लेते हैं और बी को हम हमेशा सॉल्यूट लेते हैं। सो इट इज WB अपॉन WB प्लस WA इंटू 100 यदि आपको ये परसेंटेज में निकालना है तो। व्हाट इज WB? मास ऑफ द सॉल्यूट। व्हाट इज WB? मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द व्हाट? सॉल्वेंट। दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का ही मास बनता है। ओके, नाउ ये आपको तरीके कल आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे when we are going to do the numericals on it, and इसके न्यूमेरिकल्स the most important है guys। इस चैप्टर में से थ्योरी बहुत कम है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हो गया फर्स्ट मास परसेंटेज। सेकंड आ जाते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब सर ये वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वेरी सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज? ये आमतौर पे कॉन्सेंट्रेशन का तरीका आप तब लगाते हो जब सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों के दोनों लिक्विड्स के अंदर होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं। मतलब कोई एक सिरप के अंदर आप दूसरा सिरप डाल रहे हो, लाइक रूह अफ़ज़ा यदि आपने पिया हो तो लिक्विड आता है, तो लिक्विड रूह अफ़ज़ा के अंदर पानी कितना डालना है? सो दिस इज गोइंग टू बी वॉल्यूम परसेंटेज। सो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम of solution and into 100, और simple formula is VB upon VB plus VA into 100। सर ये अलग अलग टर्म्स के हैं, मतलब तो सबका सेम ही है। प्लीज ध्यान रखना लिक्विड्स का वेट मेजर करना थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। 1 लीटर डालना है, 2 लीटर डालना है, 3 लीटर डालना है, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया आपके पास है मास परसेंटेज, ये हो गया है वॉल्यूम परसेंटेज। पहले मैं काम की चीजों के बारे में बात करता हूँ एंड देन वी विल कम ऑन टू द स्मॉलर टॉपिक्स। सो लेट्स रब दिस, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, थर्ड, which is molarity। पहले मैं उनकी बात करूंगा जिनके हम कल काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड देन फिर मैं उनकी बात करूंगा जिनके न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स आई टेल यू द फॉर्मूला ऑफ इट। व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution in liters। Now what do you mean by molarity? Molarity is shown by the letter capital M। So sir molarity का मतलब क्या होता है? Molarity is also one of the way to measure concentration। और आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं सॉल्यूट के, बताता हूं वो कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन आता है सर फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? हर बार एक ही घिसा पिटा फॉर्मूला है, इसको पूरे चैप्टर के एंड तक ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल्स टू, और क्या हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस सी। सपोज करो आई एम टॉकिंग अबाउट 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और आपने मुझे क्या दिया हुआ है, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट इज द गिवन मास, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल्स टू गिवन मास 22 अपॉन मोलर मास। मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास। कैसे करोगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, which is double 12। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 into 2 32, 32 plus 12 44, तो कितना आ जाएगा 44। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 into 2 32, 32 plus 12 44, 22 1s are 22, 22 2s are 44, और आंसर इज, and this is the number of moles, that's all. I'll try and by the way send a sheet to you to only calculate the number of moles today so that कि कल जब हम numericals करेंगे things will become much more easier for you. So let's see this. So number of moles is 0.5. आ गया, कुछ नहीं करना, given mass upon molar mass. So molarity का अब यदि अपने को फॉर्मूला बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, so molarity capital M is equals to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, आपने बाय द वे ऊपर लिखा हुआ था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पे आपने क्या लिया, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। व्हाट इज द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, WB, तो आप लिखोगे यहां पर WB अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो मैंने यहां पर निकाला मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, दैट्स ऑल। लेकिन ध्यान रखना ये सारी की सारी चीजें लीटर्स में आती है, तो व्हाट विल बी द फाइनल फॉर्मूला, इट शुड बी इक्वल्स टू WB अपॉन MB ब्रैकेट VA प्लस VB। ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, सो डोंट वरी। सो वंस अगेन रिपीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सॉल्यूशंस? Solutions are nothing else but is the homogeneous mixture of solute and solvent. What do you mean by binary solution, in which there are two components, solute and solvent? दो components होते हैं, binary solution. What do you mean by solute? Solute is a substance which is in a lesser quantity than the solvent and it is supposed to be mixed. It is supposed to be mixed in the solvent. That is solute. What do you mean by solvent? The substance which is present in the larger quantity and in which the solute is to be mixed is known as solvent. What is solute plus solvent known as? Solute plus solvent is known as solution. Okay. What is the unit of solution? Liter. What do you mean by homogeneous? Homogeneous mixtures are those mixtures in which the components cannot be separated. Heterogeneous mixture will be those kind of mixture in which the components can be separated. What do you mean by the term concentration? Concentration is equals to amount of the solute upon solution into जो भी आपको करना है into 100, 1000 like that. आज हमने पढ़ा पहला मास परसेंटेज. मास परसेंटेज is normally calculated for those substances in which both of them should be in solid form. फॉर्मूला क्या लगाओगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन. सो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? WB अपॉन WB प्लस WA इंटू 100.
What is B over here? B is known as the solute and A is known as the solvent. Then comes the word volume percentage. Volume percentage is normally calculated for those substances which are always in the liquid shape or liquid phase. So volume of solute upon volume of the solution, or VB upon VB plus VA into 100. Next पर आते हैं. The third term was molarity. What do you mean by the word molarity? Number of moles of the solute. कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के? बट सर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. आंसर आ गया. तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें आएंगी? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. दैट्स ऑल. What is the symbol which we use for the word capital, which we use for molarity? Capital M. What do you think will be the unit of molarity? It is nothing else but is mole per liter. So very very important, the unit is mole per liter. Mole per liter. Okay. So we will stop the lecture right over here. कल हम क्या क्या करेंगे? कल हम करेंगे मोल फ्रैक्शन, कल हम करेंगे नॉर्मेलिटी, कल हम करेंगे फॉर्मेलिटी, कल हम करेंगे पीपीएम, कल हम करेंगे पीपीबी एंड कल हम करेंगे द वर्ड न्यूमेरिकल्स. अब बोलोगे इतना सारा, डोंट वरी, वो जो स्टार्टिंग में बोला था वो सारा का सारा 3 ही मिनट या 5 मिनट का ही है. ओके, सी यू गाइस, एंजॉय विद दिस. द नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग अप फॉर यू एंड दैट विल बी ऑन मेट्राइसिस. ओके, मेट्राइसिस. सी यू गाइस, बाय.